Good morning, everyone. We were doing developments leading to Bohr's model. Two developments we studied which led to Bohr's model. First was dual nature of electromagnetic radiations, and the second was atomic spectra. डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने क्या किया था कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उनका डुअल नेचर होता है, वेव लाइक नेचर भी और पार्टिकल लाइक नेचर भी। वेव लाइक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो फिनोमेना पढ़े थे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं की। द सेकेंड वॉज पार्टिकल लाइक नेचर। टू एक्सप्लेन दिस, टू फिनोमेना वर black body radiation and photoelectric effect. According to wave nature, we did that all the radiations, they are in the form of waves and they have electric and magnetic fields associated with them. If they are like waves, means they have wavelength. If they have wavelength, means frequencies also associated with them. So we arrange all the electromagnetic radiations according to increasing wavelength and decreasing frequency. We did it arrangement of radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. This spectrum can be analyzed with the help of an instrument which is termed as spectroscope. Now, you all are aware about this triangular shaped instrument which is termed as prism. If through this prism white light is passed, it gets split into 7 colors, which is termed as Vibgyor. The splitting of this white light into 7 colors is known as dispersion, and the series of band which is obtained is termed as spectrum. This phenomena you also have seen when it rained heavily. बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, सारा दिन बारिश हुई हो और शाम के टाइम अगर धूप निकल आए तो जो पानी के ड्रॉपलेट्स जो सस्पेंड हुए होते हैं एटमॉस्फेयर में, दे एक्ट लाइक प्रिज्म, और सन की रेडिएशंस अगर पर्टिकुलर एंगल से उन प्रिज्म्स में से पास करे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म के फॉर्म में होते हैं और वो रेडिएशंस जो पास होती हैं वो 7 बैंड ऑफ कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं. Now in that rainbow you have seen that all the colors, they are merged into each other. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ये 7 colors के बीच में कोई गैप नहीं होता. They are in continuation with each other. Such type of spectrum is known as continuous spectrum. Here it is, in Vibgyor one color merges into other, hence it is called continuous spectrum. But the spectra of atom consists of sharp, well-defined lines. Hence, atomic spectra is of two types. One is emission spectra, second is absorption spectra. As the name is indicating, emission spectra means जब radiations emit होंगी, उन emitted radiations का हम ग्राफ बनाएंगे तो वो जो हमें स्पेक्ट्रा, जो हमें एक रेंज मिलेगी, जो ऑर्डर मिलेगा, दैट इज टर्म्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा. और अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो जितनी ट्रांसमिट होगी उनका ग्राफ मिलेगा, उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. डिस्क्राइबिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हियर, सपोज वी आर पासिंग अ लाइट थ्रू स्लिट. स्लिट में से लाइट पास कर रही है और वहां से पास करके फर्दर इट इज पासिंग थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. अब इस सॉल्यूशन में कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी की रेडिएशन इससे बाहर निकल जाएंगी. जितनी भी रेडिएशन इसमें से ट्रांसमिट हुई, अगर हम उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करें तो अदरवाइज व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. लेकिन जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो गई वो रेडिएशंस बाहर नहीं आई, इसलिए उनकी जगह पर हमें डार्क लाइंस मिलेंगी. So that is the absorption spectrum, that radiations they pass through a solution, then the transmitted light is observed, and what it was observed is that जितनी भी radiations transmit होके बाहर आ गई उनकी वजह से तो continuous spectrum मिला, और जितनी radiations absorb हो गई उन radiations वाली wavelength पर हमें dark lines मिली. So this is
absorption spectra. Second is the emission spectra. Emission spectrum कैसे obtain होता है? Spectra obtained when rays are emitted from a substance that have absorbed energy either by heating or by passing electric discharge. अगर हम किसी चीज को एनर्जी दे दें, अब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी दैट सब्सटेंस नीड टू लूज इट, क्योंकि अब उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो तो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है, तो वो सब्सटेंस उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट करने की कोशिश करेगा. अब जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी एमिट भी होगी. जो एमिटेड एनर्जी होगी उसकी भी कुछ रेडिएशंस होंगी. अगर रेडिएशंस है तो उनकी वेवलेंथ होगी. वेवलेंथ को हम इंस्ट्रूमेंट पर ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा. इन केस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर हम किसी चीज को दे रहे हैं, अगर किसी चीज को देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी विल बी लेटर ऑन एमिटेड आउट. लेकिन इन केस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अगर हम किसी एटम को या मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करें तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे. आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी दे गेट एक्साइटेड, दे बिकम अनस्टेबल, क्योंकि उनमें अब एक्स्ट्रा एनर्जी है. Now what they want is that they again want to become stabilized. How will they become stabilized? By liberating that extra energy which they have absorbed. अब वो एनर्जी लूज करेंगे और क्या हो जाएंगे, दोबारा से फिर स्टेबलाइज. जो एनर्जी उन्होंने लूज की वो हमें कैसे दिखेगी? इट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट. उस लाइट का कलर किस पर डिपेंड करेगा? जो जितनी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट हुई है, क्योंकि यहाँ हमने किया था कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं वेवलेंथ इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. इसका मतलब हर कलर की कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो जितनी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट होगी वही कलर हमें दिखाई देगा. इन दिस the spectrum consists of lines of definite frequency, hence it is called line spectrum or discontinuous spectrum. So these are the two spectra of types of atomic spectra, that is emission spectra and absorption spectra. Absorption spectra में जो radiations absorb हो गई वो हमें स्क्रीन पर विजिबल नहीं होंगी, अदरवाइज जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा दैट विल बी कंटिन्यूअस. और एमिशन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे. सपोज द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन देयर लोअर एनर्जी लेवल. आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी दे मूव टू द हायर लेवल. दिस लेवल इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. दिस इज द ग्राउंड स्टेट. Electron in its excited state is not stable. To become stabilized, it tries to come back to its ground state. कैसे आएगा वो ग्राउंड स्टेट में? जब वो एनर्जी लिबरेट करेगा जितनी उसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की है. अब जो वो एनर्जी लिबरेट करेगा उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, जो उसकी वेवलेंथ होगी वही कलर हमें एमिट होगा. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा and it is obtained in the form of lines, hence it is called line spectrum or discontinuous spectrum. On the basis of this emission spectrum, next is the emission spectrum of hydrogen atom. अब इसमें क्या किया गया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर ली और उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया. हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस किसकी बनी है? हाइड्रोजन एटम्स की. एटम्स किस चीज के बने हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के. जब हम उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन गैस में जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके हायर एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे. सपोज हमने हाइड्रोजन गैस को एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, उसके अंदर जो एटम्स थे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की एंड दे शिफ्टेड टू द एक्साइटेड स्टेट. वहां से वो कहाँ लिबरेट हुए? एक्साइटेड स्टेट से दे कैन कम टू द लोअर लेवल, क्योंकि अब उनमें एक्साइटेड स्टेट में दे आर नॉट स्टेबल एंड ईच एंड एवरीथिंग वांट्स टू बिकम स्टेबलाइज. स्टेबलाइज होने के लिए वो कैसे होंगे? जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट करेंगे. अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेट की तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ऑब्जर्व दैट द रेडिएशंस व्हिच वर एमिटेड
they were falling in the visible region. जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी वो सबसे पहली जो ऑब्जर्व की गई वो उस वेवलेंथ वाली थी जो विजिबल रीजन में फॉल हो रही थी. वहां से जे बाल्मर ने एक सिंपल रिलेशन फाइंड आउट किया टू फाइंड ईदर द वेवलेंथ और वेव नंबर, because we know that 1 by wavelength is equal to wave number. So the relation is 1 by lambda is equal to wave number is equal to 109677 into 1 by 2 square minus 1 by n square, where n is the energy level. Now this is the second energy level where the electron after its excited state calm down after releasing the energy. एनर्जी छोड़ने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे आता है then here the value is 2. ये रिलेशन बाल्मर द्वारा दिया गया कब, जब वो रेडिएशंस ऑब्जर्व हुई जिनकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में फॉल कर रही थी. इसी तरह रेडिएशंस वो दिखी जो फर्स्ट लेवल पर भी आई, क्योंकि एटम के अंदर सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, this is the first level, second level, third level, fourth level. If the electron is lying here only, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये levels नहीं है. Atom contain these levels also, but they are empty, so we don't consider them. जब हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंच सकता है. सपोज हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन इस लेवल तक पहुंच गया. आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन लिबरेट द एनर्जी, वो यहां भी वापस आ सकता है, सेकेंड लेवल तक भी आ सकता है और फर्स्ट लेवल तक भी आ सकता है. जितने भी उसमें लेवल्स होंगे अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिली वो उतने एक्साइटेड लेवल पे जाएगा और उसके बाद वो कितने भी एनर्जी लेवल पर वापस आ सकता है. अकॉर्डिंगली इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि वो अकेली वही रेडिएशंस नहीं एमिट हुई थी जो सेकेंड लेवल पे जा रही है, वो भी एमिट हुई थी जो फर्स्ट पे भी जा रही हो, सेकेंड पे भी जा रही हो, थर्ड पे भी जा रही हो, फोर्थ, फिफ्थ. दीज रेडिएशंस वर ऑब्जर्व्ड एंड according to the scientists who discovered them, those series were given the name Lyman, Balmer, Pascal, Brackett or P Fund. Accordingly, the general relation was given 1 by lambda is equal to nu bar is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. R is the Rydberg's constant whose value is equal to 109677. N1 is the constant fixed value where the electron reaches after losing the energy, and N2 is equal to N1 plus 1 or N1 plus 2 means more than N1. So in all here in this is that when we supply energy to hydrogen atoms in hydrogen gas, the electrons in the atoms they get excited and reach the excited levels where they are not stable. To become stabilized they lose the energy and move to the lower levels. अगर वो फर्स्ट लेवल पर फॉल करते हैं, जो रेडिएशन फर्स्ट लेवल पर फॉल की उनको ऑब्जर्व किया लाइमन ने, फॉर दैट द वैल्यू ऑफ n1 is 1. जो सेकेंड लेवल पे फॉल किए दैट वर दोज वर ऑब्जर्व बाय बाल्मर फॉर विच द n1 वैल्यू इज 2. थर्ड वन, दोज विच रीच द थर्ड वन that was observed by Pascal. Fourth, Brackett, and fifth, P Fund. So accordingly for 1 it is Lyman, for 2 it is Balmer, for 3 it is Pascal, 4 Brackett and 5 P Fund. And value of N2 is more than N1 always. Thanks.